welcome back to my channel, the Humanities section. And today's topic is Evolution of Psychology from Class 11 Psychology Chapter 1. What is psychology? So let's get started. So our first school of thought is cognitive school of thought. There is no theorist mentioned, so let's move on forward to the characteristics. The first characteristic is cognitive perspective tries to understand how we know of the world. Now, cognitive perspective, as you know, is associated with the mental processes of knowing, thinking, perceiving, memorizing, problem solving, etc. We read it in the starting of the chapter only. So, cognitive perspective also, the word cognitive comes from the cognition only. So, cognitive perspective naturally tries to understand how we know of the world. हम दुनिया को कैसे जानते हैं ये समझना cognitive perspective का focus है. Moving forward, cognition refers to the process of knowing. किसी चीज़ को जानने का जो process है हम उसे cognition कहते हैं. Moving forward, it involves thinking, understanding, perceiving, memorizing and problem solving. So these are the processes involved in the cognition. किसी चीज़ को सोचना, समझना, अंदर ऑब्जर्व करना इज परसीविंग, मेमोराइजिंग याद करना एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ज़रूरत पड़ने पर एट द टाइम ऑफ नीड जो भी आपने अब तक समझा है, सीखा है, उसे यूज़ करना इन अ नोवेल वे टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट. मूविंग फॉरवर्ड, कॉग्निशन हेल्प्स अस टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट. वेरी वेल सेड. बिकॉज ऊपर जो मेंशन हमारे प्रोसेसेस है ये हमें हेल्प कैसे करते हैं? हाउ डू दे हेल्प अस? दे हेल्प अस इन अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट. अगर मुझे समझ में आ गया दैट बाहर पैंडेमिक है, आई डोंट वांट, आई एम बीइंग इंस्ट्रक्टेड टू नॉट टू गो आउटसाइड, देन आई वुड ट्राई टू अडेप्ट माई सेल्फ टू स्टे एट होम, टू डू माई वर्क फ्रॉम होम. मूविंग फॉरवर्ड to the merits and demerits. So the merits is emphasized on thought process. Thought process किसी चीज़ को देखने से लेकर उसे अपने अंदर जो है ऑब्जर्व करना, लर्न करना, अपनी मेमोरी में सेव करना एंड एट द टाइम ऑफ नीड उसे यूज़ करना. उस बड़े थॉट प्रोसेस को के ऊपर इसका एम्फेसिस है कि उस ए से लेकर जी तक के प्रोसेस के अंदर क्या क्या हुआ. Moving forward is demerit over analysis. The problem, the merit is the demerit only. इतने बड़े thought process को हम over analysis करते हैं. उसे ऊपर से छोटा छोटा सेक्शन में डिवाइड करने के बजाय हम उसे बहुत ही माइक्रो सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं कि एक एक चीज़ मैंने इसे देखा, फिर मैंने इसे परसीव किया, फिर मैंने इसे मेमोराइज किया, फिर मैंने इसको ये किया वो किया. छोटी छोटी माइक्रो स्टेप्स से हम इसे जो है कट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवर एनालिसिस हो जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. मूविंग फॉरवर्ड, ह्यूमैनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट. थियोरिस्ट इज मैस्लो एंड रॉजर. कैरेक्टरिस्टिक्स, दे स्पोक ऑफ फ्री विल एंड ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल स्ट्राइविंग for growth and unfolding of their inner potential. Now talking about the humanist school of thought, you can completely relate it to humanities. Now humanities जो स्ट्रीम है, अगर आप उसमें देखेंगे तो एवरी सब्जेक्ट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स एवरी डे लाइफ. इफ यू टॉक अबाउट द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, if you are having English, Hindi, German, French, whatever language you are having in your class 11th or class 12th, you will notice that these languages helps us to interact to the other human beings present in our society, and like our neighbors, our friends, our family. So we interact them using these languages that we are learning in the humanities section. Moving forward, like we are reading economics. Now economics helps us to give us financial stability. We live in a society, we need some financial stability. That's why we need some financial studies, so that we can understand what is right for us and what is wrong for our financial conditions. Moving forward, our political science, if you are reading political science or sociology or history, they help us to understand our political system, our history, our everything from A to Z, what our country was to what our country will be. Talking about the subject psychology itself, we talk that it helps us to understand the human beings around us, why one does what he or she does. So the humanist school of thought is also based on human beings. It is completely focused on
human beings. So the first characteristics clearly says that we spoke of free will, यानी इंसान की इच्छा के बारे में हम बात करते हैं. हम चाहते हैं इंसान अपनी इच्छा से ही जिए. Moving forward, human beings natural striving for growth. Human beings are the most intelligent creation of God. We know all that. हमने ये कई बार सुना है. ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने बहुत सारी क्रिएशन बनाई है. वी हैव एनिमल्स, वी हैव इंसेक्ट्स, वी हैव टाइगर्स, लायंस, जो हमसे भी साइज में बड़े हैं. दे आर कार्निवोरस, दे कैन ईट अस अलाइव. बट हु आर द वंस हु आर मोस्ट इंटेलिजेंट, हु आर रूलिंग द अर्थ राइट नाउ, लाइक ruling the earth in a way, using it, misusing it, anything you can say. They are human beings. Why? Because they have this natural strive. Naturally they have been striving for growth, and they have been unfolding their inner potential from being Adimanas to being the most intelligent creation of the God. Moving forward, thus this perspective gave more control to individuals with their desire to self actualize. ये पर्सपेक्टिव जो बहुत ही खास है, क्योंकि रीज़न ये है इसमें इंडिविजुअल्स के पास ही पूरा कंट्रोल है कि वो अपने डिज़ायर को फुलफिल करे और सेल्फ एक्चुअलाइज करे. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज? सेल्फ एक्चुअलाइज इज बेसिकली द पीस ऑफ माइंड. सेल्फ एक्चुअलाइज इज वन ऑफ द हाइएस्ट स्टेज ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स बाय मैस्लो. तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है, जिसके अंदर सबसे नीचे सबसे बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. तो जो इंसान फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स से स्टेज से ऊपर जा चुका है और भी बहुत सारे लेवल्स, उन सब लेवल्स ऑफ नीड्स को क्रॉस कर चुका है, द लास्ट स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज विच इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट. जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो देवी देवताओं के ज़माने में हम बात करते थे मोक्ष की. नाउ व्हाट इज़ मोक्ष? मोक्ष क्या होता था? इट वॉज फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. हम ह्यूमन बीइंग्स एक साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ पे, वी आर बॉर्न, वी लिव थ्रू आवर लाइफ, वी डाई एंड वी रीबर्थ अगेन. ओके, सो इन द ओल्ड टाइम्स व्हाट दे यूज्ड टू से इज व्हेन यू गेट द मोक्ष, जब आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो तो अब आप इस साइकिल से बच जाते हो. आप बेसिकली आप अब भगवान के पास ही रहोगे, and he'll be keeping you in his own shadow. So this self actualize is bit different from moksha, but it can be called a moksha only, a type of moksha only, because it is the peace of mind. आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है बिकॉज आपकी सारी नीड्स खत्म हो जाती हैं. यहाँ पे वो कहते हैं कि आप अपने डिज़ायर को फुलफिल करोगे. इंडिविजुअल्स का काम है कि वो उनका फोकस ये रहेगा वो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करें एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन करें. ना द प्रॉब्लम हियर कम्स दैट डिज़ायर्स आर एंडलेस. हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा द मीन्स आर स्केर्स बट द नीड्स आर एंडलेस. सो सेल्फ एक्चुअलाइज करना किसी के लिए भी बहुत ही टफ जॉब होती है. मूविंग फॉरवर्ड, दिस स्पोक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में इस स्कूल ऑफ थॉट में बात की गई है. मूविंग फॉरवर्ड टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. मेरिट्स इज सॉ द इंडिविजुअल एज अ डूअर. यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का बहुत ही कम रोल होता, अगर मतलब हम ये यूज़ करते हैं तो बहुत ही कम रोल है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल ही करता धरता है, उसी को अपने डिज़ायर्स पूरे करने हैं, उसी को सब कुछ करना है. एंड द अदर मेरिट इज एम्फसाइज्ड ऑन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग हिम विद द कंडीशंस ऑफ वर्थ. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस किया गया है टू सेल्फ एक्चुअलाइज, टू फुलफिल हिज डिज़ायर एंड फोकस्ड ऑन. उसका फोकस क्या है कि हम उसे अपॉर्चुनिटी दे सके इस वर्थ की कि वो अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर सके. साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो आप उसको ऐसी कंडीशंस दे जिसके अंदर वो अपने उन कंडीशंस का वर्थ ऐसा होना चाहिए कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर सके. मूविंग फॉरवर्ड टू डीमेरिट्स. डीमेरिट्स वॉज शुगरी स्वीट. नाउ शुगरी स्वीट बाय द मीन्स कि ये नियरली इम्पॉसिबल चीज़ है. अगर मैं आपको कहूँ कि यू आर गोइंग टू अ टॉय स्टोर एंड आई एम सेइंग यार यू कैन बाई एनी थिंग यू वॉन्ट एंड आई विल बी बाइंग इट फॉर यू. सो दिस इज शुगरी स्वीट बिकॉज अगर आप कहोगे कि मुझे पूरा का पूरा टॉय स्टोर लेना है, सो दिस इज नियरली इम्पॉसिबल. यही एक एग्जाम्पल आ गया कि डिज़ायर्स आर एंडलेस. आप एक टॉय देखोगे आपका मन करेगा मैं दूसरा भी ले लूँ, तीसरा भी ले लूँ, फोर्थ भी ले लूँ, फिफ्थ भी ले लूँ, सब ले लूँ. सो डिज़ायर्स आर एंडलेस बहुत ही मुश्किल है. शुगरी स्वीट इसीलिए कहा गया है इसे. एंड हैड नो साइंटिफिक बेसिस. साइंटिफिक बेसिस कोई भी नहीं है.
ऐसा इसीलिए है डीमेरिट्स में इसके शुगरी स्वीट तो साइंटिफिक बेसिस नहीं होने का रीज़न ये है कि पहले तो आप हर एक की डिज़ायर पूरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्रिमिनल है। अगर उसे सेल्फ एक्चुअलाइज करना है, उसके पास सारी चीज़ें, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए डिज़ायर है ऐसी कि पूरा ह्यूमन काइंड हिल जाएगा, मैन काइंड ही हिल जाएगा। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि इस अकेले इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइज कराने के लिए हम बाकी सबकी ज़िंदगियाँ दांव पे लगा दें। एंड जो साइंटिफिक बेसिस नहीं होने का कारण है वो ये है कि डिज़ायर्स एंडलेस होती हैं। कोई डिज़ायर, हर एक डिज़ायर एक दूसरे को जो है रिप्लेस करती जाती है। आज आपने साइकिल खरीदी, आपका मन करेगा कि यार मेरे पास ना एक बाइक भी होनी चाहिए। फिर आप बाइक खरीदोगे, आपका मन करेगा मेरे पास ना एक कार भी होनी चाहिए। अब मैंने होंडा सिटी ले लिया, मेरा होंडा सिटी से पेट नहीं भरा, मेरा मन कर रहा है मैं मारुति ले लूँ। मारुति से पेट नहीं भरा, मेरा मन करता है मैं रोल्स रॉयस ले लूँ। So these desires are endless. This I am just talking about the vehicles. There are many other standards. अगर आप फूड पे जाओ, किसी को बेसिक फूड पे ही नहीं मिलता और कोई 5 स्टार में भी खाना झूठा छोड़ के आ जाता है। So desires are completely endless. So इसीलिए humanist school of thought is a bit difficult to achieve. जो उसके characteristics है, a bit difficult to achieve. Moving forward, Gestalt theorist is Weidemar, Kafka and Kohler. Moving on to the characteristics, the whole is greater than sum total of its parts. Now this is really very interesting. According to Gestalt psychologists, 5 is much bigger than 2 plus 2 plus 1. So sum total of its parts 2 plus 2 plus 1 is also equals to 5 only, but Gestalt says that 5 is bigger than 2 plus 2 plus 1. Second characteristics, it's focused on the organization of perceptual experiences. ना Gestalt का मानना, Gestalt school of thought के अंदर क्या है, फोकस जो होता है वो organization of perceptual experiences होता है। perceptual experiences कौन से experiences? जो हमारे साथ हो चुके हैं, हमारी मेमोरी में सेव है, हम उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हें ऑर्गेनाइज करना और उनको यूज़ करना ही हमारे Gestalt साइकोलॉजी का जो है फोकस होता है। Gestalt psychologist stated that what we experience is more than the inputs received from our environment. अब एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसे वो डोर के बीच में बार बार हाथ डालता और आप उसे कहते हो कि नहीं हाथ मत डालो, आपका हाथ बीच में आ जाएगा, आपको चोट लग जाएगी, फिर आपको इंजेक्शन लगेगा, फिर आपको दवाई भी खानी पड़ेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ब्लड भी आएगा, कट भी लग जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बस बच्चे को जो है बता रहे हो। लेकिन जो एक बच्चा है जिसका हाथ ऑलरेडी डोर में आ चुका है, वो कभी भी दोबारा गलती से भी डोर के बीच में अपना हाथ नहीं देगा। क्यों? बिकॉज ही नोज कि उसके हाथ से ब्लड निकल आएगा, कट लग जाएगा, डॉक्टर दवाइयाँ देगा, इंजेक्शन लगाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। द सेम थिंग्स जो मैंने एक बच्चे को कही और एक बच्चे के साथ हुई। सो ही सेज कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो कहीं ज़्यादा होता है फ्रॉम इनपुट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मैं एक इन्वायरमेंट हूँ जिसने एक बच्चे के अंदर इनपुट्स दिए कि अगर तुम बार बार दरवाजे में हाथ डालोगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। उस इनपुट्स का उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं हुआ। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर किड जिसका ऑलरेडी दरवाजे में हाथ आ चुका है, तो उसका वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए वो इनपुट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो गलती से भी दरवाजे के अंदर हाथ नहीं डालेगा। मूविंग फॉरवर्ड आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ Gestalt स्कूल ऑफ थॉट। मेरिट, लुक एट द बिगर पिक्चर, बहुत ही बड़ी पिक्चर की तरफ ये देखता है, जिसके अंदर जो मैं पॉइंटर्स एक बच्चे के अंदर डाल रही हूँ, जो इनपुट बच्चे के अंदर डाल रही हूँ, उससे ज़्यादा पॉइंटर्स, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक बच्चे के पास तब होगी जब उसके साथ वो चीज़ एक्सपीरियंस में होगी। वो कहेगा दवाइयाँ सिर्फ देते नहीं है डॉक्टर, दवाइयाँ कड़वी भी बहुत होती है, इंजेक्शन सिर्फ लगता नहीं है, इंजेक्शन से दर्द भी बहुत होता है, ब्लड सिर्फ नहीं निकलता, बहुत हैंड में पेन होता है, हैंड स्वेल भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, वो भी। जो बच्चे को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी उस बच्चे के पास है जिसका दरवाजे में हाथ आ चुका है। हम एक बहुत बड़ी पिक्चर की तरफ देखते हैं। मेरिट ये है। मूविंग फॉरवर्ड, गेव राइज टू थ्योरीज इन लर्निंग एंड परसेप्शन। लर्निंग एंड परसेप्शन में काफ़ी इसने हेल्प की, काफ़ी नई थ्योरीज को इवॉल्व करने में इसका हाथ है। वर्क्स बेस्ट इन एक्सप्लेनिंग ग्रुप सिचुएशंस। ग्रुप सिचुएशंस को समझाने के लिए ये साइकोलॉजी यूज़ की जा सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, डीमेरिट, लुक ओनली एट द प्रेजेंट। सिर्फ प्रेजेंट की तरफ देखता है, फ्यूचर की तरफ नोटिस नहीं डालता है। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। थ्योरिस्ट्स आर पियागे एंड वाइगोत्स्की।
It's not Piaget, it's Piaget. And characteristics are, we actively construct our minds through explanation of physical and social world. Now, the word constructivist suggests that it is related to some construction. Now, construction can be of mind, or construction can be of anything else in the mind. So here in this constructivist school of thought, we are talking about the construction of mind through how? Through the explanation of physical and social world. Now, what is the difference between physical and social world? Physical world is the world we see around us: trees, buildings, roads, and street lights, vehicles, buildings, etc., etc. The around us physical environment which we can touch. And the social world is our society, our people, our neighbors, our friends, our family, our siblings, everyone is our social world or our society, you can say. So हम इनको explain कर अपने minds को जो है रेगुलरली कंस्ट्रक्ट करते हैं. मैं कहती हूँ कि मेरा आसपास का एक इन्वायरमेंटलिस्ट का जो है माइंडसेट एक नॉन वेजिटेरियन से थोड़ा अलग हो सकता है, बिकॉज एक इन्वायरमेंटलिस्ट के अकॉर्डिंग जो फिजिकल वर्ल्ड है बहुत ही पोल्यूटेड है, जो सोशल वर्ल्ड है वो ऐसा है कि यार लोग आर टर्निंग मर्सीलेस टुवर्ड्स द एनिमल्स, दे आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन एंड यू नो एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर किलिंग एनिमल्स to eat them. They can also eat, you know, many plants are available in the market, why don't they eat? But in the view of a non-vegetarian, the world is okay and the animals are born to be eaten. You know, everyone has their own perspective, not disrespecting the non-vegetarians, but this our own explanation of physical and social world tells us helps us to construct our minds. Now, Piaget believed that a child adapted to the environment by making changes in it or by changing in himself. Piaget का मानना था कि जो बच्चा है वो environment में कैसे adapt करता है, या तो वो environment में ही changes लाता है या फिर वो खुद में changes लाता है. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने environment में changes नहीं ला सकते हैं. जैसे अब मैं हूँ, I am sitting in a room which is full of dirty clothes and the books are lying here and there, and the room is a complete mess. I can't sit in the room like this. So I can change my environment. I can clean up the room. I can remove all the dirty clothes. I can arrange all the books lying on the floor. I can arrange the whole room. But on the other hand, if I am in a place which is really very crowdy, or I'm not feeling comfortable in the particular place, so I can change myself. I can move into a place which is less crowded, the place I am comfortable in. So I cannot change the environment, but I can definitely change myself. I can change my perspective or whatever I would like to change. Moving forward, Vygotsky says, human mind develops through social and cultural processes in which the mind is constructed, a result of interaction between adult and child. Now, Vygotsky कहता है कि human mind develop करता है through social and cultural processes. Now, every society, every culture has their own cultural activities. अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, so the parents and the children talk really very less. They are introverts. They are living a individualistic life. But if we talk about the Indian culture, the Eastern culture, we are much more involved in our families. We take suggestions of our families. Even if we are taking a simple decision, we respect our elders. We have to agree their decision. You have to talk to them before taking any big decision. So, cultural and social processes different होते हैं, तो हमारे माइंड को भी ये डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है. जिसके अंदर माइंड, अब इन सोशल एंड कल्चरल प्रोसेसेस के अंदर माइंड कैसे कंस्ट्रक्ट करता है? थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन एन अडल्ट एंड अ चाइल्ड. मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही मेरा अडल्ट होगा. सो मेरा जब अडल्ट मुझसे बात करता है, सो ही गिव्स मी द एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से मैं अपना माइंड कंस्ट्रक्ट करती हूँ कि मैं अपने फ्यूचर में मुझे क्या करना चाहिए. Learning from his or her experience. Moving forward to the merits. Merits is comprehensive and gave rise to theories.
There are no demerits for the constructivist school of thought. Moving forward to information processing approach. Characteristics are: described mind as a computer that which receives, processes, transforms, stores information. Now information processing approach describes mind as a computer जिसमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, प्रोसेस होती है, रॉ डेटा इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होता है, स्टोर होता है और इंफॉर्मेशन जो है फाइनली स्टोर हो जाती है. 3 की प्रोसेसेस हैं ऑन एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. ना एनकोडिंग इन्वॉल्व्स अटेंशन. जब हम अपने अंदर डेटा एनकोड कर रहे होते हैं, कोई हमें बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है और हम जब उसको अपने अंदर जब डालते हैं तो हम उसे एनकोड कर लेते हैं कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज. जैसे अगर हम कंप्यूटर में डालें तो वो 0 1 1 0 0 0 0 ऐसे बाइनरी डिजिट फॉर्मेट में उसे जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है. वैसे हमारी बॉडी भी अपनी लैंग्वेज में उसे एनकोड कर लेती है. नेक्स्ट कम स्टोरेज. मेंटेनिंग एनकोडेड इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्टोर करते हैं हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन को. मूविंग फॉरवर्ड टू रिट्रीवल. रिकवरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी स्टोर्स. रिट्रीवल मतलब जब हमें ज़रूरत हो तो हम मेमोरी को रिट्रीव करते हैं. जैसे डेटा रिट्रीव करते हैं, किसी बैकलॉग से बाहर निकालना, वैसे ही स्टोरेज एरिया से हमारी इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना टू यूज़ इन द सिचुएशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. मूविंग फॉरवर्ड टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. मेरिट्स इज इट इज साइंटिफिक, येस, बिकॉज ये जो है नर्वस सिस्टम का ही काम है. एंड हेल्प एक्सप्लेन ह्यूमन माइंड बेटर. ह्यूमन माइंड को और बेहतरीन तरीके से इसने समझाने में हमें हेल्प की है. मूविंग टू डीमेरिट्स. देयर इज मोर टू ह्यूमन बिहेवियर देन कॉम्पोनेंट्स. नाउ इट इज स्पीकिंग द ट्रुथ कि ह्यूमन बिहेवियर में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके कॉम्पोनेंट्स में नहीं है. सिर्फ सिंपली हमारा परसीव करना, समझना इज नॉट एट ऑल इनफ, क्योंकि हमारे ह्यूमन बिहेवियर में भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करती है, हमारी माइंड को इफ़ेक्ट करती है. कोई एग्रेसिव है तो उसकी माइंड को वैसे इफ़ेक्ट करेगी. उसका चाहे परसीविंग का तरीका, चाहे उसका बाकी सारे कंपोनेंट सेम हो, जस्ट लाइक एन इंट्रोवर्ट हु स्पीक्स वेरी लेस, हु रेयरली सेज अ नो. So our today's concept has come to an end. Thank you guys for watching my video. Please like, share, comment on the video. Also, do not forget to subscribe the channel and click the bell icon for new updates. Thank you.